গ্রিন নিউজ, সঠিক খবর সব সময়। আর মাত্র কয়েকটি দিনের অপেক্ষা, দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে ২১শে নির্বাচন। ২১শে নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে গোটা বাংলার প্রত্যেকটি প্রান্তে শুরু হয়েছে হাই ভোল্টেজ রাজনৈতিক প্রচার। আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের নামখানা ব্লকের ৭ মাইল বাজারে ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী বিকাশ কামিলার সমর্থনে রাজনৈতিক প্রচারের এক বিশাল জনসভার আয়োজিত হয়। এই জনসভার সভামঞ্চে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন উত্তরপ্রদেশের ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় যোগী আদিত্যনাথ। চোখ রাখুন সুন্দরবন গ্রিন নিউজের পর্দায়, দেখতে থাকুন এই বিশাল জনসভার সমগ্র চিত্র। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বলছি যে দিদি জেনে রাখুন, इस बार 200 पार, इस बार 200 पार আমরা 200 বেশি আসন নিয়ে এই বাংলায় শাসন করতে আসবো। এই বাংলায় আমরা ফিরিয়ে আনবো গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের। এই বাংলায় আমরা ফিরিয়ে আনবো শিক্ষার্থীদের আসন, শিক্ষার পথ। এই বাংলায় বেকার যুবক যুবতীরা বেঁচে থাকার আশ্বাস পাবে, তারা কর্মসংস্থান পাবে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনের মাধ্যম দিয়ে বাংলার প্রত্যেকটি ঘরে আমরা পৌঁছে দেবো কর্মসংস্থান। আমরা এই বাংলাটিকে গড়ে তুলবো সোনার বাংলায়। আজকের বলছে এ বাংলায় খেলা হবে, এ রাজনীতিটা কি খেলার? আমরা বাংলার সাধারণ মানুষ জানি, শুধু বাংলার নয় সারা বিশ্বের মানুষ জানেন যে নির্বাচন কোনো খেলার নয়। নির্বাচনের মাধ্যম দিয়ে মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পায়, নির্বাচনের মাধ্যম দিয়ে মানুষ শিক্ষা পায়, সংস্কৃতি পায়, নির্বাচনের মাধ্যম দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকার আশ্বাস পায়, কর্মসংস্থান পায়। আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলতে চাইছেন এই নির্বাচনে খেলা হবে। হ্যাঁ দিদি, আপনি তৈরি থাকুন, খেলবে ভারতীয় জনতা পার্টি নয়, এবারে আপনার খেলায় খেলবে কন্যাশ্রী পেয়ে যে বোনটি আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বসে আছে, সেই দিদিটি খেলবে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির যে ১৩৭ জন মানুষকে আপনি খুন করেছেন, তার পরিবারের লোকজন এবারে নির্বাচনে খেলবে। যে বেকার ভাইটি যোগ্য শিক্ষিত হওয়ার পর, টেট পাস করার পর ১০ লক্ষ ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সে চাকরি পায়নি, সেই ভাইটি খেলবে। আর সেই খেলার জন্য প্রস্তুত থাকুন। ভারতীয় জনতা পার্টির খেলার দরকার নেই। বাংলার মানুষ আপনার সঙ্গে খেলবে, যাদের সঙ্গে আপনি 10 বছর প্রতারণা করেছেন। আমি দীর্ঘায়িত করবো না, কারণ আর একটু পরেই মাননীয় যশস্বী উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথজি পৌঁছে যাবেন। আরো বক্তা রয়েছেন, তারা বলবেন। একটাই কথা বলতে চাই যে 1 এপ্রিল আপনারা সকাল সকাল গিয়ে আপনারা আমাদের মনোনীত প্রার্থী বিকাশ কামিলা মহাশয়কে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন। কিষাণ মন্ডি তৈরি করা এবং মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ করা, নারায়ণপুরের সমস্ত যে জায়গাটাকে আপনারা চান যেখানে বাজার হবে, বহুমুখী হিমঘর হবে, আমার বহুদিনের স্বপ্ন এই জনসভা থেকে অঙ্গীকার করা হলো, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। আমার বোধহয় শেষ জীবনে এসে আশাটা সফল হবে। এজন্য ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আর যেই লোকটি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বঙ্কিম হাজরা, কৃষকের পেছনে লাঠি মেরে রুদ্রনগরে একটা মান্ডি করেছেন, যেখানে মানুষ কৃষি ফসল নিয়ে যায় না। আজকে তিনি হচ্ছেন কাজের মানুষ, কাছের মানুষ। কয়েকবার নির্বাচিত করেছেন, আবার সেই মানুষটাকে, কৃষক বিরোধী মানুষটাকে আপনারা সমর্থন করবেন? সেটাই আজকের বিচারের প্রশ্ন। আমি বিভিন্ন জায়গায় সভা করে এই সমস্ত কথাগুলো বলি। তৃণমূলের যারা নেতারা বক্তৃতা দেন, কৃষকের বাজারের কথা, মান্ডির কথা তারা বলেন না, কারণ বলতে গেলে
থুতুটা উপরে পড়লে ফেলে নিচে তাদের লাগবে, তাই বেমালুম ভুলে যান এই কথা। আগে দিদি বলছেন কি কেন্দ্রের দেওয়া টাকা নেব না, আর কয়েকদিন আগে বললেন নেব। কৃষক হাসে বলে সেই তো মল খসালি, তবে কেন এতদিন লোক হাসালি। কৃষকের ফসলের দাম 3 গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েকটি পেটোয়ার সংবাদপত্র প্রচার করে। কৃষক বলেন তো ধানের দাম 3 গুণ হয়েছে। 2011 সালে যা ছিল আর কৃষি ফসলের দাম 3 গুণ বেড়েছে। মোদীজি যখন বলছেন 2024-এর মধ্যে আমি কৃষকের উপার্জন দ্বিগুণ করব, দিদি তখন বলেন আমি দিতে বলতে 3 গুণ বাড়িয়ে দিয়েছি। কৃষক শুনে কি বলে জানেন? আসতে কোন কর্তা গোড়ায় হাস বলে কৃষকের বন্ধু। সুতরাং ছোট করে বলতে হবে। আমি শুধু বলি কি খেলা হবে বলছে। একটা জঘন্য রাজ্য চলছে পশ্চিমবঙ্গ, সারা ভারতবর্ষে নির্বাচন হয়, ওটাও রক্তপাত হয় না। পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে, ভোট হয়নি, বোমা পাওয়া যাচ্ছে। একটি মুসলিম ছোট শিশু বোমা খেলতে গিয়েল, সে জানতো না বোমা বলে, বল ভেবে খেলতে গেল, অকালে তার প্রাণ চলে গেল। খেলা হবে ভাঙড়ে, বর্ধমানে, যেখানে সেখানে বারুদের স্তূপ বিস্ফোরণ আকারে নিয়েছে। খেলা তাদের চলছে। विद्धात्ते वरदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि महिषासुरनी नाशिनी भक्तानां सुखदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि धूम्रनेत्रपदे देवी धर्मतमादायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि रक्तबीजपदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि निशुम्भुशुभुनि नाशि दैलोक्ये शुभदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि बंदिदाग्ने जुगे देवी सर्वसभागदायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि अचिन्त्य रूप चरित्रे सबाई बोलुन এই তৃণমূল নামক শাসককে ধ্বংস করো মা रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि ओम त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसत्कार शरन्तिका शूरतमे कर नित्या हि दमत्कास्तिकास्तिका अद्यावत्कासिता नित्या जानुच्चर्या विशेषतः सात्वं सवित्री त्वं देवी जननी परा तैत्संसिज्जन जगत् तैतत्मल्लके देवी तस्मन्ते सर्वदा सृष्टि सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपस्य पालने तथा सन्निधि रूपान्ते जगद्धोष जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुति महामहस्वमन्ति मासुरी प्रकृति स्वांगी सर्वस्व गुणत्रयी विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा भारत माता वीर सन्तान योगी आदित्यनाथ जी स्वागतम 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 योगी आदित्यनाथ जी स्वागतम 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 योगी जी स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम योगी जी स्वागतम 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 योगी जी स्वागतम 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 योगी स्वागतम 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 योगी जी 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 स्वागतम সকলে আমাদের যারা দলীয় কর্মী সমর্থক উপস্থিত হয়েছেন সকলকে বলবো আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।
আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে সেই উত্তরপ্রদেশের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথজি। আপনারা দয়া করে বসে পড়ুন, আপনারা দয়া করে বসে পড়ুন। আমি অনুরোধ করবো আপনারা দয়া করে বসে পড়ুন। আপনারা ছড়িয়ে ছিটে থাকবেন না, দয়া করে বসে পড়ুন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্যতম সহসভাপতি দক্ষ সংগঠক শ্রী জয়প্রকাশ মজুমদার মহাশয়, তো এখন আমাদের একটু বরণ পাবো হবে। সম্মানীয় আজকের প্রধান বক্তা আমাদের অনারেবল চিফ মিনিস্টার এবং ইউপি সম্মানীয় যোগীজিকে বরণ করে নেবেন মধুরাপুর সাংগঠনিক জেলা অন্যতম সভাপতি শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায় মহাশয়। সঙ্গে বরণ করবেন মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রী স্বরূপ সুন্দর মাইতি মহাশয়। এখন বরণ করবেন আমাদের জয়প্রকাশ মজুমদারজিকে সম্মানীয় জেলা সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ হায়দার মহাশয়, সাধারণ সম্পাদক মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলা। জয়প্রকাশ দাকে বরণ করবেন আমাদের মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার অন্যতম সম্পাদক শ্রী সত্যব্রত গিরি। জয়প্রকাশ দাকে বরণ করবেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি 132 সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রী বিকাশ কামিলা মহাশয়। আমরা বরণের পর্ব শেষ করলাম। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন 132 সাগর বিধানসভা ক্ষেত্রে তাদের প্রাণে সেই প্রিয় বিকাশ দা। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। মঞ্চ উপবিষ্ট আমার প্রিয় নেতা মাননীয় আদিত্যনাথ যোগীজি, জয়প্রকাশজি, আমাদের জেলা নেতৃত্ব, অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব এবং আমার সম্মুখে যারা বসে আছেন বিভিন্ন স্তরে বুথ থেকে আরম্ভ করে মন্ডল শক্তি প্রমুখ এবং বিভিন্ন সমর্থক মন্ডলী, এই এলাকার নির্বাচক মন্ডলী, সুধীজন গুণীজন, সুশীল সমাজ, এই এলাকার শাসক এবং বিরোধী দলের যেসব নেতা নেত্রী আছেন প্রত্যেককে আমার অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে জানাই গভীর ভালোবাসা, অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। 132 বিধানসভা আমার দল আমাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছেন। একটা কথা বলতে চাই, আমি অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা একটি ছেলে। দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে সংগ্রাম এবং লড়াইয়ের মধ্যে আছি। দল আমাকে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে এবং আপনারা আমাকে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন আগামী দিনে আপনাদের কাছে থাকার জন্য। সাগর বিধানসভায় 4টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত, ঘোড়ামারা, সাগর, মৌসুমী এবং ওদরা নামখানা। এই 4টি দ্বীপের যারা মানুষজন বসবাস করেন, প্রায় মানুষ কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, অত্যন্ত গরিব মানুষজন, দিন আনে দিন খায়, পান্তা মানুষজন। আমি সেই পান্তা ভদ্রা মানুষের প্রতিনিধি, অত্যন্ত সদাশীদের গরিব মানুষ, আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে সারা জীবন কাছে রাখতে চাই। সাগরে অনেক কাজ সমাপ্ত আছে, নদীবান বাউন্ডারি এবং সাধারণ মানুষের বহু সমস্যা আছে, যে সমস্যাগুলো বিগত দিনে আমাদের ডিজাস্টার করবে বলে করেননি। আশা রাখি আপনারা যদি আমার আশীর্বাদ করেন, আপনাদের বাড়ির ছেলে, কাছের ছেলে আমি সবসময় কাছে রাখবো। ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমার স্ত্রী 2 জন ছাড়া আপনারাই আমার পরিবারের সন্তান, ছেলে বলতে পারেন, মা বাবা সবাই আপনারা। যে কারণের জন্য আপনাদের কাছে রাজার অঙ্গীকার নিয়ে
আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন পান্তাবাদ খেয়ে যেতে পারি, এটা আমার অঙ্গীকার। অহংকারে যেন আমার মাটি থেকে পানা সরে যায়, এটা আমার অঙ্গীকার। আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। আমার প্রিয় দাদাজি এসছেন, যোগীজি এসছেন, যার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। আপনার আশীর্বাদ করলে, নির্বাচন মন্ডলী আশীর্বাদ করলে আপনাদের পাশে আছি থাকবো, এটা আমার অঙ্গীকার। আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। এখন যার বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা ওইদিকে আগ্রহ অপেক্ষা করছেন, সেই মাননীয় যোগীজি আপনাদের সামনে তার অমূল্য বক্তব্য রাখবেন। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। আমি বাংলার পবিত্র মাটিকে প্রণাম করেছে যেখান থেকে गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, चैतन्य महाप्रभु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एवं और अनेक महान पुरुष বেরিয়েছিলেন। আমার ভাগ্য যে আমি এই মাটিতে এসছি আপনাদের কাছে मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान जयप्रकाश मधुकलाल जी, जनप्रिय प्रत्याशी श्रीमान विकास कामिला जी, श्रीमान अरुण जाना जी, कृष्णेंद्र बहन जी, स्वरूप सुंदर महती जी, श्यामा प्रसाद हरदर जी, सत्यव्रत गिरी, मिलन कुमार दास जी, पलाश राणा जी, अशोक उकायत जी, और भूमिया जी, दिलीप राणा जी, असित मंडल जी, कैलाश चंद भूया जी, और यहाँ पर लोकसभा के प्रभारी के रूप में काम कर रहे श्री मान सिंह गोस्वामी जी, भारी संख्या में इस सागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से उपस्थित है। इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की धरती से रामकृष्ण परमहंस जी की और चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरती पर आपके बीच में आया हूं। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती है। जब भी भारत किसी चुनौती से घिरा है, बंगाल भारत को उस कालखंड में मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रहा है। याद करिए, कभी चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे क्षेत्र में अपनी भक्ति से सनातन धर्म को जीवित रखने का कार्य किया था, और कभी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साधना से बंगाल की धरती को एक नई ऊंचाइयां दी।
कभी इस धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी का विपुल फूका था और कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बंगाल की ही धरती है जहां से स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और पूरी दुनिया के मंच पर जाकर के न केवल बांग्लादेश बंगाल का बल्कि भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को वैश्विक मान्यता देने का कार्य किया था। ये बंगाल की धरती है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का पहला नोबेल प्राइज प्राप्त किया था और भारत को राष्ट्रगीत देकर के पूरे भारत में आजादी के बाद राष्ट्रगीत के रूप में किसी की कृति को महत्व मिला तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जनगण मन को मिला। और भाइयों बहनों, ये बंगाल की ही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगीत दिया वंदे मातरम के रूप में, जो भारत की आजादी का अमर गीत बन गया, जिसको गाते गाते हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं की, विदेशी फिरंगियों की गुलामी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बंगाल की धरती है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की आजादी के विपुल को एक नई ऊंचाइयां दी थी। और इसलिए बंगाल की धरती हमारे लिए अनेक प्रकार से पवित्र धरती है। काम करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की पीड़ा के साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी आई हुई है। बंगाल कभी भारत का समृद्ध राज्य माना जाता था। बंगाल कभी भारत का औद्योगिक राज्य माना जाता था। बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे करके पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। टीएमसी के गुंडे किस तरीके से यहाँ पर अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। अभी 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक की निर्मम हत्या यहां पर हुई है और हम आपसे कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, 11 दिन नहीं, कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तक टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इन सभी गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यहां पर न रोजगार की व्यवस्था दी, न नौकरी की व्यवस्था दी, उद्योग धंधे बंद हो गए। टीएमसी के गुंडे तोड़ाबाजी करके विकास के लिए आने वाले पैसे को जबरन हड़पने का काम करते हैं और यहाँ की जनता विकास के नाम पर देखती रह जाती है। विगत वर्ष यहाँ पर एक साइक्लोन आया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ के लोगों को सहायता देने के लिए किया, लेकिन पैसा टीएमसी के गुंडों ने हड़प लिया। जनता के पास पैसा गया ही नहीं, राहत पहुंची ही नहीं। सरकार ने जनता के सामने पहुंचने ही नहीं दिया। इसका मतलब टीएमसी का विकास में कोई रुचि नहीं।
ममता दीदी पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री है और भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों में उन्होंने बंगाल के अंदर कितने लोगों को मकान दिया है, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को दिया है, ये पूछा जाना चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख गरीबों को एक आवास यूपी के अंदर दिया है। 1,38,00,000 गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं। 1,35,00,000 गरीब परिवारों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन दिया है। 2,61,00,000 गरीब परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आरोग्यता का बीमा कवर उपलब्ध करवाया है। और भाइयों बहनों, 2,42,00,000 किसान परिवारों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आखिर ये लाभ बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की जनता को ये लाभ मिल पा रहा है तो फिर बंगाल की जनता को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण साफ है, टीएमसी की सरकार का लोक कल्याण में, जन कल्याण में, जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं है। ममता दीदी इसमें कोई रुचि नहीं लेती, उनका विकास में कोई रुचि नहीं, न हाईवे, न रेलवे, न एयरपोर्ट, न एम्स, न मेडिकल कॉलेज, ये कुछ भी दीदी नहीं बनने देगी यहां। क्योंकि दीदी को तो एक ही काम करना है, अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आप सामने देख रहे होंगे भवन, और सामने एक और भवन, ये भी भव्य रंग से रंगे हुए हैं। ये भारतीय परंपरा की प्रतीक है। यही भगवा था जिसे लेकर के चैतन्य महाप्रभु भक्ति का गीत गा करके गली गली में जाकर के भक्ति का संदेश देकर के व्यापक जन जागरूक करके उस कालखंड में बंगाल को बचाने का काम किए थे। यही भगवा था जिस भगवे को पहन करके स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू धर्म और संस्कृति की अलग दुनिया के अंदर जगाने का काम किया था। यही भगवा है जब सूर्य देव उगते हैं, इसी भगवा लालिमा के साथ वह एक नई जीवंतता हमें प्रदान करते हैं। और यही तो भगवा है। जैसे हम जब अष्टमी के दिन मां काली की पूजा करते हैं तो मां काली को भी यही हम अर्पित करते हैं, भगवा की परंपरा पर। और अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहते हैं कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जबान को बंद कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं, बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है।
आखिर इसी बंगाल की धरती पर तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बंगाल की धरती से एक नारा दिया था और वह नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की कुटिल नीति के कारण भारत के संविधान में धारा 370 जोड़ने की कुत्सित चेष्टा हुई थी, उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई थी, तो बंगाल की धरती पर पैदा हुए महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक व्यवस्था बना दी है कि अगर 24 परगना क्षेत्र के नौजवान भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहेंगे तो उनको वहां पर इसकी पूरी स्वतंत्रता होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, ये लड़ाई को लड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है। पाकिस्तान भारत के अंदर घुस करके पहले आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन आज जब भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हैं, आतंकी कैंपों को नष्ट करते हैं, तो पाकिस्तान की भी झिग्गी बन जाती है। पाकिस्तान भी आज वहां पर अब स्वयं बचाव की मुद्रा में खड़ा होता है और यह कार्य करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। जब दोनों सरकारें एक होती हैं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, तो डबल इंजन का काम करती है। डबल इंजन, ये डबल इंजन केंद्र में मोदी जी और बंगाल में भी बीजेपी, ये जब दोनों एक साथ चलेंगे तो बंगाल के अंदर विकास चलेगा, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगा, माता और बहनों को भी सम्मान मिलेगा, मकान मिलेगा, आवास मिलेगा, जल सुविधाओं का लाभ मिलेगा, गरीबों को राशन मिलेगा, मछुआरों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर एक सम्मान निधि देने का कार्य होगा और सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल करके उनकी आजीविका को सुरक्षित करने का कार्य होगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी अब सबसे कहने के लिए आई है। ये ममता दीदी नहीं करेगी, लोक कल्याण में, जन कल्याण में, विकास में उनकी रुचि नहीं है, वो तो भाई भतीजेवाद में पड़ गई है और भाई भतीजेवाद के कारण अब ममता दीदी का विकास में कोई रुचि भी नहीं रह गई है। अराजकता का नया तांडव पैदा करना चाहती है। 2 वर्ष पहले पंचायत चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी बंगाल के अंदर, लोगों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया था। लेकिन आज मैं आपसे इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए। भारतीय जनता पार्टी आपकी सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ मिलकर के कार्य करेगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री विकास कामिला को अपना प्रत्याशी बना करके इस सागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके बीच में उतारा है। श्री विकास कामिला आपके बीच के एक जुझारू प्रत्याशी है। इन्होंने आपके बीच में संघर्ष किया है, इन्होंने यहां पर आकर के आपके हितों के लिए कार्य किया है और ये आने वाले समय में भी बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप लोग सभी श्री विकास कामिला को समर्थन देंगे? सभी लोग सहमत हैं?
इधर भी सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। इधर भी उधर भी जो भी जहां भी है मेरे साथ बोलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। নমস্কার। আজকের সবাই যারা এসেছিলেন সবার শেষে তাদেরকে সবাইকে আমি জানাই আমার পরম শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন। 12 তারিখ পর্যন্ত লড়ে যাবেন। আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য যা যা করার দরকার সেটুকু করবেন। ধন্যবাদ। আইকন হেলথ সেন্টার, নামখানা নারায়ণপুর, শ্রী দুর্গা আইডিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের বিপরীতে। এখানে সমস্ত রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুগণ চেম্বার করছেন। যোগাযোগ 9432825226। গণেশ ফ্লাওয়ার ডেকোরেশন, এখানে যে কোনো অনুষ্ঠানে ফুলের কাজ যত্ন সহকারে করা হয়। বিশদে জানতে আজই কল করুন। মোবাইল নাম্বার 8942065956 এবং 6291566572। সুন্দরবন গ্রিন নিউজের সমস্ত খবর সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশনের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন।